Hello students, hope you all are healthy and welcome once again to my class. This video is for class 7th and today we'll continue chapter 4 of civics, that is state government. In this we have already discussed the topic state legislature and the legislative council, Vidhan Parishad, and the eligibility about the legislative council. Now our today's topic is legislative assembly, eligibility of legislative assembly and legislation. So what is legislative assembly? Legislative assembly is the lower house of the state. As I've told you, the legislative council or Vidhan Parishad is the upper house of the state. So the lower house of the state is legislative assembly और विधान सभा. विधान सभा या legislative assembly जो होता है वो राज्य की lower assembly या lower जो सभा होती है, निचला सदन जिसको हम कहते हैं. Now it is composed of representatives who are elected by people. इसका composition कैसे होता है, इसका गठन कैसे होता है इस असेंबली का? So it is composed of representatives who are elected by people from assembly. तो ये elect चुन के आए होते हैं असेंबली में, ये लीडर्स या रिप्रेजेंटेटिव elect होके आए होते हैं असेंबली में from assembly constituency. असेंबली की जो भी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, जो भी चुनावी क्षेत्र थे, वहां से लोगों द्वारा by the common people or the citizens of the country have elected the representatives of the legislative assembly within the state. Now these constituencies have been set in a manner to ensure, अभी जो constituencies हैं, जो चुनावी क्षेत्र हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं या इनको एक मैनर में, एक ऐसे मैनर में सेट किया जाता है, एक सिस्टमेटिक वे में सेट किया जाता है ताकि जो पॉपुलेशन है और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका रेशियो बराबर रहे. मींस जो हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है, जो भी क्षेत्र है स्टेट के, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, वो सब कवर हो जाए या सब का जो नेतृत्व है या फिर कंट्रोल है उसको गवर्नमेंट कर पाए. सो these constituencies have been set in a manner to ensure the proportional representation of the population in the assembly. जितनी जिस राज्य की जनसंख्या होती है उसके अकॉर्डिंग उस लेजिस्लेटिव असेंबली या विधान सभा की मेंबर्स की संख्या होती है. इफिशिएंटली वहाँ की जो वर्किंग है उसको कंट्रोल किया जा सके या फिर उसको संभाला जा सके. Those states who have a large population will have a proportionality larger assembly. वो स्टेट्स जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसी के प्रोपोर्शन में, अनुपात में वहाँ की असेंबली भी और बड़ी होगी या उसके मेंबर्स भी ज़्यादा होंगे. फॉर एग्जाम्पल असेंबली ऑफ उत्तर प्रदेश. Uttar Pradesh is the largest populated state with 404 members in legislative assembly or Vidhan Sabha, while Sikkim is the lowest populated state with 32 members in the legislative assembly or Vidhan Sabha. उत्तर प्रदेश जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है और वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या विधान सभा है वो भी इतनी बड़ी है जिसमें 404 मेंबर्स हैं. और उसी में सबसे हमारा लोवेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, दैट इज सिक्किम, हैज ओनली 32 मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान सभा. The constitution of our country India has divided the legislative assembly or Vidhan Sabha into upper and lower limit. So the assembly has both. The seats are limited and cannot be over 500 and cannot be less than 60. Means
जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है हमारे देश का, उसने अपर और लोअर लिमिट विधानसभा की फिक्स कर रखी है, एक लिमिटेशन तय कर रखी है। एंड द मेंबर शुड नॉट बी मोर देन 500। किसी भी स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होंगे या विधानसभा के जो मेंबर्स होंगे वो 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते, एंड नॉट लेस देन 60, और 60 से कम नहीं हो सकते। बट देयर इज एक्सेप्शन ऑल्सो। इन गोवा, सिक्किम एंड मिजोरम this rule is not applicable. Means in these states there is less than 60 members in the legislative assembly or the Vidhan Sabha. यहाँ पे 60 से कम मेंबर हैं because the population of the state is also less as compared to other states. That's why this rule is not applicable in these 3 states, Goa, Sikkim and Mizoram. Now, governor, beside of the elected members, the governor can nominate one member of the Anglo-Indian community. बाकी सारे मेंबर्स इलेक्ट होके आए होते हैं, लोगों द्वारा चुन के आए होते हैं विधानसभा में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम मेंबर्स, कुछ मेंबर होते हैं जिनको जो गवर्नर होते हैं स्टेट के वो नॉमिनेट करते हैं। Like Anglo-Indian. Anglo-Indian, the citizen of our country whose citizenship or nationality is Indian, but they are not the belongings of our India. Means वो हमेशा से इंडिया के ही मेंबर नहीं रहे हैं, वो किसी दूसरे कंट्री से इंडिया में आए हैं, एंड नाउ दे हैव द नेशनैलिटी, या अब उनके पास यहाँ की सिटीजनशिप है। सो दे आर द एंग्लो इंडियंस। ऐसे किसी मेंबर को नॉमिनेट करते हैं गवर्नर एज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा। नाउ द होल असेंबली इज लेड बाय द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। जो पूरी ये असेंबली है, सभा है, इसको कौन लीड करता है? स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, who are elected by the MLAs, and the speaker and deputy speaker are elected by the members of legislative assembly or Vidhan Sabha. The tenure of the legislative assembly is 5 years. The tenure, कार्यकाल, the tenure of legislative assembly or Vidhan Sabha is 5 years, but in certain circumstances or in any kind of emergency, the governor can also dissolve the assembly before the completion, before the time of completion. Means 5 साल के पहले भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है या विधानसभा होती है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, एंड इन सम कंडीशंस there is expansion in the time of the legislative assembly or the Vidhan Sabha also. अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में ज़रूरत पड़ी तो उसको बीच में ही डिसॉल्व भी किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, या फिर उसके टाइम लिमिट को बढ़ाया भी जा सकता है। बट एक्सपेंशन इन एनी इमरजेंसी और इन एनी सर्कमस्टांसेस, द एक्सपेंशन कैन नॉट बी मोर देन 6 months. मीन्स 6 महीनों से ज़्यादा का एक्सपेंशन नहीं होता। मीन्स 5 साल से आगे 6 महीने का और एक्सपेंशन किया जा सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस में। नाउ व्हाट इज द एलिजिबिलिटी टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा? क्या एलिजिबिलिटी, योग्यता होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य होने के लिए, मेंबर होने के लिए? सो द फर्स्ट वन कंडीशन इज बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। द मेंबर should be a citizen of India, whether male or female should be citizen of India. भारत का नागरिक होना जरूरी है। Second one, should be 25 years old. The member of legislative assembly, or if a person wants to be member of legislative assembly or Vidhan Sabha, should be 25 years old. 25 साल या उससे ऊपर का होना चाहिए। Must be a part of constituency of the state. जिस भी
राज्य के जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र से उसको इलेक्ट होना है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उस क्षेत्र का वो पार्ट होना चाहिए, मीन्स उस क्षेत्र का वो हिस्सा होना चाहिए। नाउ आवर नेक्स्ट वन टॉपिक इज लेजिस्लेशन। व्हाट इज लेजिस्लेशन? लेजिस्लेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड इनैक्टिंग द लॉज। लेजिस्लेशन ये प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या बनाते हैं? लॉ, कानून को बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। The house where this rule making process takes place is called legislature। और वो हाउस जहाँ पे ये लॉ बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? legislature। Now who are the members who are responsible for preparation of law or for the implementation of law? So the members of parliament, members of legislative council, members of legislative assembly are the person who are responsible for the implementation and for making of law, and the participant members who are involved in the process of making of law are known as legislators। और वो पार्टिसिपेंट्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं इस लॉ मेकिंग प्रोसेस में उन्हें क्या कहते हैं? लेजिस्लेटर्स। The enact laws for country and the people are obligated to follow them, and the rules, the laws implemented by these legislators are supposed to be followed by the citizens of the country. Now the process of making law. First, the draft bill of law is introduced either in legislative assembly or in the legislative council of the state। तो किसी भी लॉ को बनाने का जो पहला स्टेप होता है वो होता है ड्राफ्ट बिल, जिसको कहाँ पे पेश किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, या तो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में या फिर विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल में। आफ्टर दे डिस्कस द इंट्रोड्यूस्ड अ लॉ इन द हाउस, आफ्टर दे डिस्कस, बाद में इस बिल पे डिस्कशन के बाद इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन दे मेक एन अमेंडमेंट, फिर बाद में इसमें अमेंडमेंट, चेंजेस किए जाते हैं, संशोधन किया जाता है। इफ दे पास द बिल, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली से, लेजिस्लेटिव काउंसिल से ये बिल पास हो जाता है, दे सेंड इट टू गवर्नर फॉर द अप्रूवल। बाद में इस बिल को गवर्नर के पास भेजा जाता है अप्रूवल के लिए, और अप्रूवल मिलने के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। After the sign of governor, the bill becomes an act. Now our next one topic is members of state functionaries. This topic will continue in our next class. I have given you short question answers and homework which you have to complete. Read the chapter properly and don't forget to give your attendance in the comment section. Thank you class.